Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the new edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद निशित। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताज़ा समाचार अब तक लाते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक श्री A.K. भट्टाचार्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। और अब शुरुआत करते हैं हेडलाइन से, जिन्हें आप तक ला रहे हैं निशित कुमार। The headlines: wholesale inflation declines to 2.04% in July from a 16-month high of 3.36% in June. Indian benchmark ends marginally higher. Sensex adds 149 points. Nifty gains 0.02%. And after report shows US crude and gasoline inventories fell, Brent crude was 0.43% higher at $81.04 per barrel. खुदरा मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर जून के 3.36% के 16 महीने के उच्चतम स्तर से कम होकर जुलाई में 2.04% तक गिर गई। भारतीय शेयर बाजार में मामूली बढ़त, सेंसेक्स 149 अंक बढ़ा, निफ्टी में 0.02% की वृद्धि हुई दर्ज। और अमेरिका में कच्चे तेल और गैसोलीन का भंडार कम होने की रिपोर्ट आने के बाद ब्रेंट क्रूड का मूल्य 0.43% की बढ़त से $81.04 प्रति बैरल पर जा पहुंचा। Market Mantra, Market Mantra. Today we begin this session with the news on inflation, which has come in after rising for 4 consecutive months. Wholesale inflation declined to 2.04% in July, according to the latest government data released on Wednesday. India's wholesale inflation, as measured by the Wholesale Price Index WPI, cooled to a 3-month low of 2.04% in July from a 16-month high of 3.36% in June, primarily due to a sharp reduction in food prices. The annual WPI inflation rate was 2.04% in July 2024, down from 3.36% in June 2024, says the ministry in its release. And inflation in food prices stood at 3.45% during the month compared to 10.8% in June. In July 2024, the annual inflation rate for primary articles was 3.08%, down from 8.8% in June. The Reserve Bank of India, RBI, which primarily considers retail inflation for its monetary policy decisions, maintained the benchmark interest rate, that's the repo rate, at 6.5% for the 9th consecutive time in its August review. This decline in the WPI inflation aligns with the retail inflation data for July. Retail inflation dropped to a 59-month low of 3.54% in July, primarily due to a high base effect, according to data released by the National Statistical Office, NSO, on Monday. And moving on to the next story, that's on exports. India's merchandise imports rose 7.4% year-on-year to $57.48 billion in July this year, as compared to $53.49 billion in July last year. The services front, the export of services are estimated to be at $28.4 billion in July this year, up over 8% year-on-year basis, as against $26.2 billion in the same month last year. And services imports stood at $14.5 billion in July, compared to $13.7 billion in July 2023. And major drivers of merchandise export growths in July 2024 include electronic goods, engineering goods, drugs and pharmaceuticals, meat, dairy and poultry products, and RMG of all textiles. The electronic goods exports increased by 37.3%, engineering goods exports increased by 3.6%, drugs and pharmaceuticals exports increased by 8.3%, the meat and dairy and poultry products exports increased by 56.1%, and textiles exports increased by 11.8%.
क्या कहेंगे मिस्टर भट्टाचार्य, जो आज ये फिगर्स आए हैं, अगर हम पहले इन्फ्लेशन की बात करें, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो जिस लेवल पे आ गया है, और हमने देखा है कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में भी गिरावट आई है, आपको लगता है दे आर मूविंग इन सिंक, और ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं इकोनॉमी के बारे में? देखिए, जो होलसेल प्राइस जो है वो तो ये दर्शा रहा है कि जो प्रोड्यूसर प्राइस जो है, जो दाम हम और आप वो उसमें इम्पैक्ट नहीं होते हैं, पर प्रोड्यूसर का जो प्राइस है उसमें ये बहुत दिन से ही ये प्राइस एक मॉडरेट लेवल से चल रहा था, और इसको स्टेबिलिटी इस लेवल में लाना ये अच्छी बात है। फूड में भी जो होलसेल फूड प्राइस है वो भी स्टेबल है, पर जो देखना है हमें वो रिटेल प्राइस है, क्योंकि रिटेल प्राइस हम और आपको इम्पैक्ट करता है राइटली, और उसको इकोनॉमी की डिमांड को भी इम्पैक्ट करता है। होलसेल प्राइस में अगर 2.06% जो है, उसका मतलब यही है कि जो प्रोड्यूसर जो है, जो कंपनी जो है, उनकी मार्जिन बरकरार है, इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर होलसेल प्राइस कम होगा इसका मतलब उनको जो सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है तो उनका जो मार्जिन है वो बरकरार रहता है। तो ये होलसेल प्राइस को कंट्रोल में लाना, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर जो है, उसके लिए एक अच्छी खबर है। पर जो इकोनॉमी की जो बात आपने जो जिक्र की, उसके लिए हमें दोनों प्राइस को देखना है, और दोनों प्राइस में हमें रिटेल प्राइस तो ओवरऑल जो जुलाई का नंबर जो आया था वो फर्स्ट टाइम बहुत महीने बाद 4% के नीचे आया था, पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो आपका जो किस लिए ये रिटेल इन्फ्लेशन अभी भी 3.65 में अटका हुआ है, उसका कारण यही है कि वेजिटेबल प्राइस, अगर वेजिटेबल प्राइस को देखेंगे और उसमें भी जो दो आइटम्स जो हैं वो अनियंस और पोटैटो, इसका मतलब प्याज और आलू, टमाटर भी नहीं, तो हम लोग कहते हैं कि टॉप कमोडिटीज़ जो है वो उनको देखना चाहिए। तो इसीलिए जो रिटेल प्राइस अभी भी 4% के करीब जा रहा है। मुझे ये लग रहा है कि जो होलसेल प्राइस का जो इम्पैक्ट प्रोड्यूसर्स लेवल में अच्छा होगा, इसका एक डिलेड इम्पैक्ट मेरे ख्याल से एक रिटेल प्राइस में भी आने की उम्मीद कर सकते हैं। और विंटर आने वाले हैं, बरसात अच्छी हुई है, रिजर्वायर लेवल पानी अच्छा है, मानसून का स्प्रेड भी अब की बार अच्छा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो ऑफ कोर्स अभी भी बहुत संभले हुए वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी का उनको नई जो अक्टूबर में जो बैठेगी जो उसमें देखेंगे, पर इंटरेस्ट रेट को घटाना की आशा इस वक्त हमें करना नहीं चाहिए। इंटरेस्ट रेट को घटाना होगा तो मेरे ख्याल से यही टेंडेंसी, यही ट्रेंड को और भी प्राइस को मेंटेन करना पड़ेगा, और मे बी अगले साल 2025 तो जब सस्टेन रहेगा तभी वो ये लेंगे। और उसका और एक इंटरेस्ट रेट का और एक आर्गूमेंट ये है कि अगर आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने आप ही कह रही है कि इस साल 7.2% रहेगा, तो आप इंटरेस्ट रेट को, मतलब ग्रोथ उतना बड़ा चैलेंज नहीं है इस वक्त, इन्फ्लेशन चैलेंज है। और अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो 2-3 इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस भी आने वाले हैं, उस समय अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जो वोटिंग पैटर्न है वो इन्फ्लेशन से इम्पैक्टेड होती है। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन के ऊपर जो कड़ी नज़र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे आई है, वो कड़ी नज़र चलती आएगी, और इंटरेस्ट रेट का घटाना वो आशा हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते। AKB, you rightly mentioned that the retail inflation has to be seen in the coming days. How it comes, of course, WPI has come down, but 2.04 coming down from 3.36%, still very significant, I would say. And as you mentioned earlier, that with the widespread monsoon kind of copious rainfall that we are seeing, we're having these days, mostly we'll see the trend declining more and more in the coming days. Your say on that? You have to recognize that wholesale prices are always are something that are paid. These prices are impacting the producers.
Now, when the producers are paying a lower unit price for various items, so whether it is food or manufactured items, so what happens is that their ability to control costs goes up. But it also indicates that the demand for raw materials and components are not very high. If the raw material demand or the component demands are more, which means the producers are going out and buying larger goods, the prices tend to go up. Their prices going down is also an indication that the manufacturing companies are probably not going in for a larger number of items and goods to buy and produce and sell them in the market. So there is a demand challenge is getting reflected in these soft WPI inflation But numbers Mr. also. Bhattacharya, WPI for a long time negative territory में था, so उस दौर से तो हम निकल आए हैं. Oh, of course, there is no doubt about it. If you compare it, we have come out of that. But what I am saying is going forward, that this level of WPI is also indicative that the demand is very soft. So क्या लेवल आपको लगता है ऑप्टिमम होगा WPI का? देखिए, जो WPI का जो इसमें एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नज़र रखनी पड़ेगी, इसके अंदर सर्विसेज नहीं होता है. तो और हमारी इकनॉमी में सर्विसेज ऑलमोस्ट 60% है. तो 60% की जो प्राइस की जो होलसेल प्राइस की जो इम्पैक्ट वो इस WPI में वो कैप्चर नहीं होती है. तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कंपोनेंट्स, एग्रीकल्चरल गुड्स, फूड आइटम्स, ये इसमें आती है. तो मुझे लगता है कि अगर इस लेवल में रहे, ये इंडस्ट्री के लिए ठीक है. सेम 2 to 4%. 2 to 4%, that should be fine. अगर WPI अगर 4% या 5% से बढ़ जाता है तो इंडस्ट्री को भी टेंशन होगा, बिकॉज उनका मार्जिन स्क्वीज में आएगा. Right. मैं समझता हूँ 2 to 4 is a reasonable. That's always been the Achilles heels, if you can say so. Now, talking of goods, let's discuss about the next story, which is about the export. Now, this is really heartening. 7.4% increase year on year to $57.48 billion in July this year, as compared to 53.49 billions last year, in July last year. Now, this is also very significant, AKB. And also, when we consider the export of certain, merchandise exports and goods like ITs, electronics and things like that, it really is very heartening to see. 7% is certainly better Yeah. than the 5% exports growth that you saw in the first quarter. It's a good sign. But I think it is also reflecting the global demand, which is once again a problem area. There are talks about recession already gripping the US economy. Japan, there are problems. Europe, there are problems. So therefore, in this situation, to have notched up a growth rate of 7% in exports is certainly a performance that is worth noting. Incredible, But I'd this say. is just 7%, but we need to increase our exports growth to higher levels, because what you need to see, what you did not talk about, was the imports. The imports are rising at a sharper pace, and because of the oil prices having moved up. So what has happened is that your trade deficit for July has gone up at a higher rate than it was in June, Right. and particularly in July last year. So therefore, we have to take an overall picture. While export 7% growth is good, but your deficit figure is widening further. Is something for the external sector of the economy, which is a key sector, your foreign exchange reserves and everything are concerned. So we need to be mindful of that also. एक चीज़ पर आपका ध्यान खींचना चाहूँगी, इलेक्ट्रॉनिक गुड एक्सपोर्ट्स में 37.3% का उछाल आया है. ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि शायद जो हमारी PLI स्कीम्स हैं, दे आर बेयरिंग फ्रूट, जो चाइना +1 की तरफ. मोबाइल फ़ोन में PLI स्कीम ने काम किया है, और उसी के लिए ये जो एक्सपोर्ट्स की जो फिगर आप देख रहे हैं वो एप्पल की एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा जुड़ा हुआ है. मैं समझता हूँ कि जो एक्सपोर्ट्स जो है वो सिर्फ एक दो सेक्टर में ना होकर
जो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स जो उसमें भी जाना चाहिए। जी, टेक्सटाइल Leather, एक्सपोर्ट्स में 11.8% you know, बढ़ा है। अच्छा साइन है। लेदर में जाना चाहिए, ऑटोमोबाइल में जाना चाहिए। ये शुरुआती जो आपने PLI की बात कही है, एकदम सही बात है कि PLI स्कीम मोबाइल फ़ोन में काम कर रही है, पर बाकी और कोई स्कीम सेक्टर में अभी तक उसने काम अभी दिखाया नहीं है। चाहिए। अब रुक करते हैं शेयर बाजार का, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच आज भारतीय शेयर बाजारों में मामूली बढ़त दर्ज हुई। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.19% की तेजी से 149 अंक बढ़कर 79,105 पर बंद हुआ और निफ्टी 0.02% की बढ़त से 4.75 अंक बढ़कर 24,143 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो BSE मिड कैप सूचकांक 0.41% की गिरावट में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.75% की नुकसान दर्ज हुआ। The Indian benchmark indices ended marginally higher in the volatile session today. At close, the Sensex was up 149 points or 0.19% at 79.105 and the Nifty was up 4.75 points or 0.02% at 24,143. The BSE mid-cap was down by 0.41% and BSE small-cap slid 0.57%. In the Sensex, 15 out of 30 companies traded in the positive territory, and the top gainers today were TCS at 2.30%, HCL Tech at 2.09%, and Infosys at 1.44%. The major laggards were Ultratech Cement Company at 2.46%, JSW Steel at 1.93%, and Tata Steel at 1.81%. And in the sectoral indices of the BSE, 5 out of the 20 sectors logged gains. The major gainers were information technology at 1.41%, tech at 1.33%, and consumer durables at 0.13%. Conversely, the laggards were metal at 1.51%, commodities at 1.04%, and energy at 0.95%. The overall market breadth of the BSE was negative. Out of 4,036 companies, shares of 1,498 companies advanced, 2,425 declined, and 113 remain unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपये 94 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला सूचकांक 0.02% बढ़कर 102.58 पर बंद हुआ। मिस्टर भट्टाचार्य, अभी शेयर बाजार की क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? जो हमने एक गिरावट देखी, ये रिसेशन के जो फियर्स हुए US में, उसके बाद अब क्या आपको लगता है कि स्टेबलाइज हो रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये जो वॉलेटिलिटी जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि क्लियर साइंस अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। जो अमेरिकन मार्केट में जो उथल पुथल जो अभी हुआ, अभी भी वो स्टेबलाइज नहीं किया। जापान का जो कैरी ट्रेड फेयर जो था वो अभी भी उसका जो डर जो थे, क्योंकि इंटरेस्ट उन्होंने अचानक बढ़ा दिया, उससे क्या हो कि वो पैसा वापस चला गया है, तो उससे भी काफ़ी अनसर्टेनिटी है, रिसेशन का डर है। और डोमेस्टिक मार्केट में जो अर्निंग सीजन जो है उसका जो सिग्नल्स जो आ रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है, इन द सेंस दैट कि पहले जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स का जो एक्सपेक्टेशन था, वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो एक्सपेक्टेशन उतनी अच्छी नहीं आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट जो इस लेवल में जो है, इस लेवल में ये रेंज बाउंड रहेगा। कोई ज़्यादा अनलेस कोई ब्लैक स्वान इवेंट या और कोई मेजर कोई अनाउंसमेंट डेवलपमेंट आ जाए, उससे ना। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बीच में जो हिंडनबर्ग की जो एक नई रिपोर्ट आई है, उसके बाद भी जो स्टॉक मार्केट ने उतना ज़्यादा उस इम्पैक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब जो इम्पैक्ट जो हो रहा है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स मार्केट में US एंड जापान एंड और आपका जो डोमेस्टिक जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो रिजल्ट्स की जो सिग्नल्स जो आ रही हैं उसमें उसके लिए हो रहा है। तो और बजट के जो इम्पैक्ट जो भी जो होना था, जो LTCG का इम्पैक्ट, वो अब पास्ट में चले गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट इसी में रेंज बाउंड चलता रहेगा। बट अभी फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, सो आपको लगता है कि उससे एक नई वो ऊर्जा मिलेगी बाजार को? ज़रूर मिल सकती है। फेस्टिवल सीज़न है, और
पर कंज्यूमर गुड्स सेक्टर की अगर इंडिकेशन देखेंगे आप, पर्टिकुलरली जो रूरल मार्केट में जो डेटा आ रही है उसमें ज़्यादा डिमांड का सर्ज नहीं आ रहा है, इंडिकेशन नहीं आ रही है। तो अगर फेस्टिवल सीजन में ज़रूर एक पुश मिलता है, पर वो पुश काफ़ी लिमिटेड रहेगा, क्योंकि रूरल डिमांड और इवन अर्बन डिमांड में भी उतनी एक जो तेज़ी जो होती है वो अभी तक नहीं दिख रही है। पर आपकी बात सही है कि फेस्टिवल के टाइम में थोड़ी बहुत तेज़ी मिलेगी, और उससे जो एफएमसीजी कंपनीज जो हैं, रिटेल कंपनीज जो हैं, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनीज जो हैं, उसमें काफ़ी उनको फ़ायदा भी हो सकता है। AKB, on a lighter note, you mentioned about the Hindenburg report this time. So last year in January, we saw what happened, the tumultuous phase that we saw. But this time, it seems the Indian investors, the Indian market are mature enough this time. And as they say that you can't hang, a man twice for the same crime. So this time it was true. But this Hindenburg report was not less on the corporates, but more on the regulatory apparatus. So probably the markets discounted many of the suggestions that the market report was making. True. Yeah. Now, one point I would like to pick up here is about the mid caps and the small caps. They're really kind of bleeding a bit as compared to the. Of course, well, they had really run ahead of their actual valuations. Right. So they've become too expensive. And particularly in the small cap segment. So I think they are coming down to ground reality. So there is a reality check happening. So I would say that if you have to be a little cautious about the markets, you should be very mindful of both the mid cap stocks as well as the small cap stocks. पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं थ्रू SIPs, दे हैव नथिंग टू वरी अबाउट। वेल, जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स जो हैं थ्रू SIP में, वो म्यूचुअल फंड में, उनकी जो वरी जो होनी चाहिए वो किस तरह के जो स्कीम में वो इन्वेस्टेड हैं। अगर मान लीजिए वो ऐसी जगह में, ऐसी स्कीम में इन्वेस्टेड हैं जो स्कीम अगर एक मिक्स्ड स्कीम है, डिफरेंट अगर ब्लू चिप कंपनीज के साथ साथ जो मिड कैप या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ मिली हुई होती हैं, तो वो अलग होगा। पर मैं समझता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो उतने ज़्यादा एक्सपोज नहीं होंगे जितने कि डायरेक्ट शेयर्स में जो इन्वेस्ट करते हैं। जी, सो अभी रिस्क फैक्टर जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो वो भी हाई रहता है। आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का। पहले एशियाई बाज़ार। 5 प्रमुख एशियाई बाज़ारों में आज रुख मिला जुला रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.8% बढ़कर बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.7% की बढ़त दर्ज हुई और जापान का निक्केई सूचकांक 0.5% की बढ़त में रहा। दूसरी ओर हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.35% के नुकसान में रहा और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.6% की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां बढ़त का रुख था। फ्रांस का कैक 0.6% की तेजी पर था। जर्मनी के डैक्स में 0.3% की वृद्धि थी और लंदन के फुट्सी में 0.4% की बढ़त चल रही थी। And moving on to the US markets, the US indices closed up on Tuesday and hit a near 2-week high after softer producer prices data reinforced bets of an interest rate cut by the Federal Reserve in September. And major US markets were trading in green. The Dow Jones Industrial Average finished up 1.04% and the broad-based S&P 500 gained 1.6%, while the tech-rich Nasdaq Composite Index also advanced 2.4%. सो काफ़ी हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट में रिवाइवल हो गया है। जो रिसेशन के फियर्स थे, आपको लगता है कि वो बहुत गंभीर है? क्योंकि हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं लेकिन अभी तक दे हैव बीन एबल टू अवॉइड रिसेशन। फेड ने जिस तरह से उसको मैनेज किया है, उन्होंने काफ़ी एक जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ ले जा रहे हैं ये, और जिस तरह से इन्फ्लेशन के ऊपर जोर लगाया है और कि उनकी जो मैनेजमेंट रही है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बहुत खूब मैनेजमेंट है, अच्छा मैनेजमेंट है। पर तब भी जो रिसेशन की जो इम्पैक्ट होती है अर्ली, अगर माइल्ड रिसेशन भी हो तो उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो होगा। ऑन सेंटिमेंट ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल में इम्पैक्ट होगा। और ऑलरेडी उनके यूएस के लिए भी इलेक्शंस आ रहे हैं वहाँ पे,
तो वो भी काफ़ी सेंसिटिव मामला है। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर यूएस में अगर ऐसी अवस्था चले तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ से आते हैं। हालांकि अब डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ के भी उतने ही ज़्यादा हो गए हैं जितने कि बाहर से विदेश से पैसे आ रहे हैं। पर तब भी यूएस इकोनॉमी में अगर मान लीजिए अगर मंदी आती है, माइल्ड मंदी भी आती है, तो इंडिया के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा एक्सपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट्स यूएस के ऊपर काफ़ी निर्भरशील है। तो अगर यूएस की डिमांड घट जाती है तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो एक्सपोर्ट जो हमने कही कि जुलाई में 7% की वृद्धि हुई थी, तो उसको मेंटेन करना, सस्टेन करना भी एक चैलेंज हो सकता है। What reason do you see, AKB, of the continuous outflow from the Indian markets of the foreign institutions? They are kind of almost continuously for the past couple of months we have been seeing the outflow of funds from you. You know, it's a function of where they should park their money. They suddenly feel that probably going back home, the US, they are not taking the money into some other emerging market. Remember this. And how far is VIX kind of? So VIX is playing? very high. It's 42% right now. So. और ये जो सितंबर में बहुत ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशन हो रही है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट करेगा, कितनी आपको संभावना लगती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या बाजारें रिएक्ट करेंगे? अगर नहीं हुआ, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जेरेमी पावेल वो अपनी जो स्टैंस जो है उसको मैनेज करते हैं, अगर मान लीजिए रेट कट नहीं होता है, तब भी मैं समझता हूँ ऐसी कोई बहुत बड़ी एक हवड़ा तबड़ी नहीं होगी जिससे कि मार्केट में उथल पुथल हो जाएगा। तो इट विल बी अ वेल मैनेज्ड शो इन माय व्यू। Moving on to crude now. Oil prices rose slightly on Wednesday after an industry report showed that the US crude and gasoline inventories fell as the market watched for a possible widening of the Israel-Gaza war, which may impact the global oil supplies. In the global crude market, the Brent crude was trading 0.43% higher at $81.04 per barrel, and meanwhile, the WTI crude was also up by 0.47%, trading at $78.72 per barrel when reports last came in. Now, talking of the West Asia or the Middle East crisis that we are seeing, where do you see this oil kind of shaping up? And well, I think the oil market equation have undergone a very significant change. It's no longer a West Asian crude dependent market as far as India is concerned. India's Brent crude is not just dependent on the West Asian crude oil. Almost 40% of our total crude oil imports, we almost import around 89% of our needs. Now 40% of that is coming from Russia. Russian crude oil, the Urals are cheaper. So it is cushioning the Indian economy from a possible external shock on the thing. So while at a broader sense, this increase in Brent crude oil price going up is a signal that we cannot ignore, and it may be challenging for us to manage our external economy. But at the same time, I would say that we, as long as our Russian Ural keeps coming, so that impact will be cushioned to a great extent. और बता दें कि ताज़ा समाचार मिलने तक भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 0.31% की बढ़त से 71,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। 999 गुणवत्ता चांदी का मूल्य 0.47% बढ़कर 81,810 रुपये प्रति किलो पर था। समय समाप्त हो गया है। भट्टाचार्य जी, आप आए और मार्केट मंत्रा के श्रोताओं को इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you so very much, Mr. Bhattacharya. And now, before we close, a reminder of the headlines once again. The wholesale inflation declines to 2.04% in July from a 16-month high of 3.36% in June. Indian benchmark ends marginally higher. Sensex adds 149 points and Nifty gains 0.02%. And after the report shows that the US crude and gasoline inventories fell, Brent crude was 0.43% higher at $81.04 per barrel. Well, that's it in this edition of Market Mantra. From the entire team here, it's goodbye. Market Mantra.